Yes, after the evaluations of determinant in your exercise 4.1, now let us expand the determinants by using some properties. Properties means minor and cofactor. This is your two exercise I have covered in this. One is 4.4 and 4.5. Definition of minor. Every word is important in these definitions. Minor of an element Aij means minor element के लिए जाते हैं. Of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which that element lies. Minor of an element Aij is denoted by capital Mij. Remark: minor of an element of a determinant of order n, of course greater than and equal to 2, is a determinant of order n minus 1. For example, if I take A is a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. If I take M11 minor, means minor of this element 1. This is A11, deleting the first row and first column. Mean if this is a determinant of order 3 by 3, then minor of this will be a determinant of order 2 by 2. By using these properties. Minor of an element of a determinant, ये कोई है, इसका माइनर का आपने इसका माइनर लेने एलिमेंट्स के ऊपर लिए जाते हैं. टोटल 9 माइनर्स आएंगे. एंड 2 by 2 डिटर्मिनेंट जैसे आप इवेल्युएट करते थे वैसे आप कर सकते हैं. इट विल बी 45 minus 48 which is minus 3. If I take M12, this is deleting the first row and second column 4, 2, 7 and 9. This is 36 minus 14 is 12. M13 4, 5, 7 and 8. 32 minus 35 it is minus 3. So this is the minor of the element of first row. Similarly, M21, now delete the second row and first column. This is 18 minus 24 is minus 6. 5 में deleting the second row and second column, that is 9 minus 21 is minus 12. M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए. दिस इज 8 minus 14 is minus 6. This is the minor of the second row. Third row, it is M31. Third row, first column 2, 3, 5, 2. 4 minus 15 is minus 11. M32, third row, second column 1, 3, 4, 2. 2 minus 12 is minus 10. M33, third row, third column 1, 2, 5, 4. 5 minus 8 is minus 3. Again you can observe the definition of minor. Minor of an element Aij of a determinant, determinants का ही माइनर लेते हैं, is the determinant obtained by deleting ith row and अब थ्योरीज के ऊपर ध्यान दीजिए. एग्जामिनेशन में फिर थ्योरी करके पढ़ के चले जाएं तो चैप्टर रिवाइज हो जाता है. सिर्फ आपको वर्किंग क्लियर होनी चाहिए.
minor of an element of a determinant of order n greater than or equal to 2 will be a determinant of order n minus 1. Next definition is cofactor. Cofactor of an elements aij denoted by capital Iij, और कुछ बुक्स वाले कभी कभी कैपिटल Cij भी कहते हैं. Is defined as aij minus 1 raised to power I plus j into mij, where mij is the minor of aij. इसका मतलब माइनर विद प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर्स. मीन्स यहां से अगर हम कोफैक्टर लिखेंगे तो A11 तो -3 आएगा, बट अगर जो A12 कोफैक्टर लिखेंगे तो -12 आएगा, और A13 लिखेंगे तो -3 आएगा. ऐसे A21 6 आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है. A22 -12 एंड A23 इज 6. साइन चेंज हो जाएंगे. ऐसे ही A31 इज -11, A32 साइन चेंज होंगे इसमें, एंड A33 साइन चेंज नहीं होंगे. सिर्फ आपने सिंबल्स का ध्यान देना. -1 रेज टू पावर I प्लस j, 1 + 1 2 पॉजिटिव, 1 + 2 3 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स. नाउ कोफैक्टर हैज 2 प्रॉपर्टीज. 2 प्रॉपर्टीज आपको कोफैक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिनको आपको बहुत ध्यान से नोट करना है. Two properties of cofactor. Number 1, determinant. मीन determinant is obtained. जैसे 3/3 या 2/2. Sum of the product, मल्टीप्लाई करना, of the elements of any row or column with their corresponding factors. मतलब एलिमेंट्स ऑफ R1 आप क्या ले सकते हैं, 1 2 3, एंड कोफैक्टर्स ऑफ R1 मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 इज 1, A12 इज 2 एंड A13 इज 3. कोफैक्टर A11 इज -3, A12 is -12 and A13 is -3. अब डिटर्मिनेंट मीन डेल्टा इज 1 × -3. देखो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर. A11 का कोफैक्टर ये है. सम मतलब प्लस भी करना है. 2 × -12 प्लस 3 × -3. Answer will be -3 -24 and -9 comes to be -36. अब आप सेकंड रो के एलिमेंट्स लेंगे और सेकंड रो के कोफैक्टर लेंगे, तब भी सेम आंसर आना चाहिए. नाउ टेकिंग सेकंड रो, एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर. एलिमेंट क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट इज 4 × व्हाट आर इट्स कोफैक्टर्स, सेकंड 6 प्लस -12 × 5 प्लस 6 × 6. दिस इज 24 -60 प्लस 36. आंसर इज 0.
लेकिन आंसर दोनों केसेस से हमारा सेम आना चाहिए था। ये 22 आएगा। तो दिस बिकम्स -22. So this is -22. M13 32 - 35 - 3, तो A13 -3 होगा। ओके, और ये 4 5 दूसरा एलिमेंट यहाँ 2 है, तो दिस बिकम्स 12. तो 36 - 60 is -24. Here -3 -44 -9, 12 -56. ठीक है, लेट अस टेक नाउ थर्ड रो के एलिमेंट्स एंड थर्ड रो के कोफैक्टर्स. नाउ टेकिंग थर्ड रो, थर्ड रो के एलिमेंट है 7 इंटू -11 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू -3, तो -77 -27 प्लस 80, दैट इज -24. एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट्स गलत हो रहा है. फर्स्ट में मैंने यहाँ 5 के साथ 2 लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ये 2 है, क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ से करी है. तो ये 45 - 16 it is 29, तो दिस विल बी 29. तो दिस इज 29 इंटू 1, तो दिस इज प्लस 29. नाउ इट इज -24. अब ये ठीक है. एक एलिमेंट की वजह से परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा कहने का मतलब मैं ये प्रूव करना चाहता था कि आप किसी भी रो के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, द एलिमेंट ऑफ द रो आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो. मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये 0 होगा अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लूँ एंड सेकंड रो के कोफैक्टर्स ले लूँ. ठीक है, मतलब सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं. दैट इज 1 इंटू सेकेंड रो के कोफैक्टर कहाँ पे हैं,
ये 6 प्लस 5 इंटू -12 प्लस 2 इंटू 6, सॉरी ये 2 आएगा और ये 3, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेने हैं और सेकंड रो के, देखना 0 आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम कोफैक्टर्स की वेरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, और आपकी पहली एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सारे सम्स हैं जब आप 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। बस ध्यान से देख लेना कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, जिस रो के एलिमेंट हैं उसी रो के कोफैक्टर लेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, जिस रो के एलिमेंट है किसी दूसरी रो के कोफैक्टर लेंगे तो 0 आएगा। कोफैक्टर का मतलब है माइनर विद प्लस माइनस साइंस। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी से रिलेटेड है। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जब मैं यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड देता हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर शो कर देता हूँ, n बाई n इज डिफाइंड एज, एक तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कैपिटल Aij कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है जो कोफैक्टर की हेल्प से बनेगा, लेकिन उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। वेयर Aij इज द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ Aij एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A, Adj डॉट A। मीन्स बड़ा सिंपल पॉइंट्स हैं। इसी क्वेश्चंस में जो बोर्ड के ऊपर है, अगर जब मैं आपको एडजॉइंट ऑफ A लिखने के लिए कहूँ तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए T डाल देंगे। कोफैक्टर्स मीन A11, A12, A13, A21, A31, A32 and A33, and if I substitute their values, A11 is 29 minus 22 minus 3, 6 minus 12 and 6 minus 11, 10 and minus 3, and transpose। एडजॉइंट में कैलकुलेशंस होती हैं, गलती हो जाती है, इसलिए बच्चों को हम वेरीफाई करने के लिए ये दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो यू मस्ट हैव ए प्रैक्टिस ऑन दीज प्रॉपर्टीज कि डिटर्मिनेंट मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स अब आप यहाँ पे ओरली चेक कर सकते हैं कि अगर ये मेरे 3 कोफैक्टर ठीक हैं या नहीं, सेकंड रो के एलिमेंट्स लेके इसको मल्टीप्लाई कर लो। 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 माइनस 22 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -3, तो -110 एंड -6 एंड 116, आंसर इज 0। दिस इज द वेरिफिकेशंस। इसका मतलब ऊपर वाले 3 एलिमेंट मेरे ठीक हैं। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट से कर लो, वो मैंने पहले ही कर रखा है, सेकंड रो को फर्स्ट से। ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट से कर लो, थर्ड रो के कोफैक्टर्स ले लो, -11 प्लस 20 एंड -9। इट मीन्स दीज कोफैक्टर्स आर राइट। तो कोफैक्टर को चेक करने के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आएगा कोफैक्टर का, और बच्चों की गलतियां भी होती हैं, चेक करने के लिए ये इसके सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर करके अपनी गलतियां निकाल सकते हैं। ओके, दिस पार्ट ऑफ द थ्योरी इज कंप्लीट। नेक्स्ट,
adjoint of a square matrix of order 2 by 2। ये एक्चुअली शॉर्टकट मेथड है, आजकल बहुत पॉपुलर है। ऑल दो जो मेन मेथड है वो आपको ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया गया। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सिर्फ दिस मेथड इज ओनली मेंट फॉर इन ए 2 by 2। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 1 2 3 and 4, if I ask adjoint of A, एक मेथड तो वही है जो आपने 3 by 3 में लिखाया, पर दूसरा यह कि हम इसको क्विकली लिख सकते हैं, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। 1 4 का 4 1 बना दिया एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं, ये ट्रांसपोज नहीं लगेगा। दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट्स। यही बच्चे की मेनली इसमें गलती है, इसलिए मैं कहता हूं बार बार थ्योरीज के ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हम ऑर्डर 3 by 3 से वेरीफाई कर लेते हैं। ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया 3 by 3, A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 and A33, and if I take adjoint of A, it is A11 A12, कैपिटल का मतलब कोफैक्टर्स हैं, A21 A22 A23 A31 A32 and A33 and their transpose. Now if I take A into adjoint of A is A11 A12 A31 A32 and its adjoint of A, ट्रांसपोज के बाद A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 and A33। इसको समझ लीजिए, आपके साथ बड़ा इजी रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, आई आस्क यू कि एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहला एलिमेंट्स क्या आएगा, A11 इंटू A11 A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। अभी आपने प्रॉपर्टी से पढ़ा है किसके इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। अगर जो आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही अगर जो इसको इससे करेंगे, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट्स A11 A31 A12 A32 प्लस A13 A33। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं। इसी तरीके से आप नीचे के सारे लिखेंगे। अब ये सेकंड रो चलेगी, A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 थर्ड एलिमेंट्स A21 A31 A22 A32 A23 A33।
थर्ड A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13, A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23। तीसरा A31 A31 A32 A32 A33 A33। अब by using both the property, this is determinant of A, this is 0 0, this is 0, this is determinant of A, this is 0 0 determinant of A. It means this is determinant of A into identity matrix. So this theorem is totally based on the properties what I have given you the two. These two properties are very very important. कि जिस एलिमेंट्स को लेना और उसी रो के लेना तो डिटर्मिनेंट आएगा, किसी दूसरे से ले रहे हैं तो जीरो आएगा। आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। सिमिलरली आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं। ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर if determinant of A is equal to 0. A square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. एग्जामिनेशन में यहां से भी क्वेश्चंस काफी आते रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम्स हैं। अगर जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लूं, डेल्टा के साथ डिटर्मिनेंट को मेंशन कर लेना चाहिए, विदाउट लेफ्ट हैंड साइड कभी मत लिखिए। अब अगर जो आप माइनर M11 लिखते हैं तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। M12 लिखते हैं तो आंसर 0 और M21 लिखते हैं तो -4 और M22 लिखते हैं तो इज 2। इट्स कोफैक्टर इज 3 ठीक है, इट्स कोफैक्टर इज 0 ठीक है क्योंकि -0 हो जाएगा, इस कोफैक्टर 4 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर 2 ही रहेगा। ये आपने काम करना। वेरीफाई आप यहां पे भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, ये सेकंड रो के एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6। प्रॉपर्टी इसमें भी वैलिड है। तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एक्सरसाइज नहीं है, ओनली फॉर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हैं। मैंने एक सम के कोफैक्टर आपको निकालने सिखा दिए थे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, फोर्थ ले लेते हैं, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम्स। डेल्टा आपको दिया हुआ है 1 1 1 XYZ XY ZX एंड XY, यहां पे YZ होगा। Using cofactor of the element of third columns, evaluate determinants। थर्ड कॉलम्स का जो एलिमेंट पहला बनेगा वो A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम्स। यहाँ के कोफैक्टर बनेगा Z - Y, देन A23,
माइनस साइन कोफैक्टर का आएगा z माइनस एक्स, देन a33 ये प्लस के साथ आएगा y माइनस एक्स. नाउ डिटर्मिनेंट इज yz इंटू z माइनस वाई माइनस zx इंटू z माइनस एक्स प्लस xy इंटू y माइनस एक्स. डिटर्मिनेंट देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसमें सिंप्लीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पहले आप एक्स स्क्वायर की टर्म सेलेक्ट कर लो. यहां से एक्स स्क्वायर आएगा तो यहां से जेड बचेगा और एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा माइनस वाई. फिर आप एक्स वाली टर्म्स ले लो. एक्स वाली टर्म्स आप यहां से देखेंगे तो यहां से तो माइनस जेड स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर. फिर आप विदाउट ले लो. फिर आप यहां से देख लो कि आप कॉमन क्या ले सकते हैं. मैं y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूं क्योंकि ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड, ये आ जाएंगे. अब नया वेरिएबल y ले लो. अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो यहां से आता है x माइनस जेड, क्योंकि y एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, प्लस x कॉमन z माइनस एक्स. अब यहां से y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, यही आपका आंसर है. थ्योरी पार्ट मैंने लगभग 50% आपको 4.5 एक्सरसाइज का लिया इस वीडियोस में. आई एम गिविंग यू द फ्यू क्वेश्चन दैट यू विल प्रैक्टिस. एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है. मैंने जितने सम्स लिए हैं हम उतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे सकते हैं. पहले 4 सम ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. क्योंकि बाकी में आगे इनवर्स की थ्योरी लग जाती है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं की. Let me take 2 questions from this exercise. पहला तो यही है कि फाइंड द एडजॉइंट्स, दूसरे में वेरीफाई करना है. इसका मतलब आपने दोनों ही केसेस में एडजॉइंट तो निकालना ही है. मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ. 1 माइनस 1 एंड 2, 2, 3 एंड 5, -2, 0 एंड 1. देखिए हमारा काम करने का तरीका, पहले आप a11 निकाल लो. 3, 5 दैट इज 3. फिर आप a12 निकालो, माइनस साइन लगा दो.
क्योंकि -1 रेज टू पावर i प्लस जे, 2 5 -2 1, 2 + 10 इज -12। सिमिलरली आप A13 ले लो, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे A13 है, ये 0 -6 सीधा +6 लिख सकते हैं। लेकिन इट्स माई सजेशंस फॉर यू पीपल्स कि जैसे आपने 3 निकाली हैं, आप इन तीनों को पहले चेक करिए कि आपके ठीक हैं या नहीं। जैसे फर्स्ट रो के कोफैक्टर आप थर्ड रो से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना चाहिए, -6 0 और +6, ठीक है। लेकिन ये 0 गलती हो सकती है, इसलिए सेकंड से कर लो। 6 -36 + 30, इसका मतलब मेरे ये 3 कोफैक्टर 100% ठीक हैं। ऐसे ही अब आप सेकंड रो को पकड़िए, A21 नेगेटिव आएगा क्योंकि IJ, इसका ध्यान रख लेना। अब इसको डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, -1 2 0 एंड 1, आंसर इज -1, तो 1 आ जाएगा। आप पूरा लिखना चाहें तब भी ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में करना चाहें तब भी ठीक है। जैसे ये है तो आपका ये A22 ये डिलीट हो गए, ये और ये डिलीट हो गए, तो 1 + 4 दैट इज 5, एंड A23 0 माइनस साइन तो इसी का ही आएगा, I + J का, 0 -2 कम्स टू बी 2। ये माइनस साइन ब्रैकेट में ही लगाया करो। चेक करने का तरीका फर्स्ट से कर लेते हैं, 1 + 4 5 -5 5, ये भी ठीक है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम्स, मैंने आपको कहा कि आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, -5 -6 इज -11। A32 नेगेटिव साइन आएगा, बस इवन और साइनों का ध्यान रखिए। 5 - 4 दैट इज आंसर इज -1। A33 3 + 2 दैट इज 5, 11 -11, तीनों ठीक हैं। अब आपसे पूछा गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, मीन्स 3 -12 6 1 5 and 2 -11 -1 and 5 एंड ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज के बाद तो यही बनेगा, 3 -12 and 6 1 5 and 2 -11 -1 and 5, hence and verify that A into adjoint of A, वो आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आर्टिकल कराया। ठीक है, 3 -3 +12 +12 24 27 आना चाहिए, तो दिस विल बी 27 0 0 0 27 0। चेक कर लो, ये आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से डिटर्मिनेंट लिख सकते थे कैसे, 1 × 3 + -1 × -12, जिस रो के एलिमेंट हैं उसी रो के कोफैक्टर्स लेने हैं। आप सेकंड को सेकंड से कर लेंगे तब भी यही आएगा, थर्ड को थर्ड से करेंगे तब भी आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A × A कर सकते हैं, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको आप 27 /
तो ये पॉइंट आपका यहाँ से ऐसे कवर हो जाता है। तो जितनी आप एडजॉइंट्स और कोफैक्टर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये सम ईजी रहेंगे और नॉर्मल रहेंगे। तो इस वीडियोज़ में आपके 4.4 कंप्लीट एंड 4.5 फर्स्ट 4 क्वेश्चंस।